Okay, my dear student, I am going to explain you magnetic field lines and its property. So let us first of all know what do we mean by magnetic field lines. What is this magnetic field lines? So magnetic field lines is the line along which any test magnet, or you can say magnetic compass needle, moves in the magnetic field if magnetic compass needle is free to move. अगर मैग्नेटिक कंपास निडल मूव करने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, रखने से कंपास जो है मैग्नेटिक कंपास निडल, और यू कैन से वेरी स्मॉल निडल टेस्ट मैग्नेट, बहुत छोटा हो और वो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस से, बड़े मैग्नेट का इन्फ्लुएंस से वो मूव करता है, तो जैसे जैसे मूव करेगा उसके पाथ को ड्रॉ कर देंगे, दैट विल बी द magnetic field lines. You can say if this is a bar magnet, इसके नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो इसके कारण जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द एरिया अराउंड द मैग्नेट in which magnetic influence can be felt by other magnet. So if we are putting here a test magnet, a small magnet is placed here. I am placing here a test magnet and it is very small due to influence of north and south pole. As we have learned that north pole repels, like poles repels and unlike poles attracts. So this, if it has north pole here, so it will repel and south pole will attract. Due to these two combined effect, there will be a force experienced on this test magnet. This is the field magnet. This is called as field magnet, and this is called as test magnet. Test magnet. So if force is applied by test magnet, when test magnet is placed in the magnetic field, and due to the force applied by the field magnet, it will start moving. It will start moving either towards the magnet or away from the magnet. If path is drawn, path of this test magnet, movement of this test magnet is drawn, that is known as magnetic field lines. Having with the direction, इधर की ओर मूव कर रहा है, मान लीजिए ये रिपेल हो रहा है, ये इधर की ओर मूव कर रहा है, तो ये जिधर मूव करेगा उधर की ओर बनाएंगे. ओके, दिस इज द definition of magnetic field lines. So it is magnetic field lines is imaginary lines. It is not the real lines. We draw it imaginary. So it is imaginary lines, but it is represented. It is used to represent the real magnetic field. So what is the, now come to its property. What is the property of magnetic field lines? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के क्या प्रॉपर्टी है? तो नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल. इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल. It will start from north pole and it will not be terminated at south pole. It will start from north pole and move to south pole. नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इन करता है and remain continue in the मैग्नेट में भी कंटिन्यू ये रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं. दिस इज द मैग्नेट, बार मैग्नेट. हियर इज द साउथ पोल, ये साउथ पोल है, हियर इज द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल से निकलेगा, ऐसे जाएगा, और साउथ पोल से ऐसे इन होगा. और भी फील्ड इसमें निकलेंगे, ऐसे इस तरीके से निकलेंगे, इस तरीके से ये नॉर्थ पोल से निकलेंगे, और इट विल रिमेन कंटिन्यू हियर, इट विल रिमेन कंटिन्यू टू द साउथ पोल में इन कर जाएंगे.
ये निकलेंगे और ये साउथ पोल में इस तरीके से इन कर जाएंगे। ये यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू अंदर में भी ये रहेंगे इस तरीके से कंटिन्यू लाइक दिस। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस starts from north pole and it will continue to the south pole as well as remain continue in the magnet. So the second property arises, we have taken second property यहीं से लेते हैं कि कोई भी इस तरीके का बनता है यहाँ से कंटिन्यू रहता है तो ये इसको कहते हैं क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप बनाएंगे। ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि ये यहाँ से गए और फिर यहाँ से ऐसे गए। दिस इज नॉट ए क्लोज्ड लूप, दिस इज ए क्लोज्ड लूप। और इसी तरह से यहाँ पे ये बनते हैं। यही हो गया आपका सेकेंड प्रॉपर्टी जी, क्लोज्ड लूप रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3, वी कैन राइट दैट magnetic field lines never crosses each other. Magnetic field lines never crosses each other. एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करता है, never crosses each other। ये कभी भी, ये देखिए यहाँ से जितना भी लाइंस खींचने हैं ये सभी लाइंस जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे से टच भी नहीं होगा। यहाँ पे अलग से ऐसे बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे और भी खींचा जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से इसके अंदर भी ऐसे रहेंगे, बट they will never crosses each other. Question arises that why it never crosses each other? ये क्यों नहीं क्रॉस करेंगे? What is this? Locus movement of the test particle है। तो किसी भी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो एक जगह क्रॉस करने का मतलब है, if they crosses then there will be two direction of motion of the magnetic compass needle at a time। एक साथ दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास निडल मूव करेगा तभी क्रॉस होगा, एक दूसरे क्रॉस करेगा। तो कोई भी चीज़ें फिजिकली वो दो डायरेक्शन में एक चौराहे से दो रास्ते पे आप नहीं चल सकते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक कंपास निडल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो दो रास्ते पे नहीं जा सकता, कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इफ दे क्रॉसेस, ऐसे मान लीजिए कि ये क्रॉस करता है तो यहाँ से इधर भी जाएगा ऐसा नहीं पॉसिबल है। दूसरा रीजन भी हम लोग देखते हैं कि वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, यही चीज जो है आपको यहाँ बताना है। ठीक है, अब तीसरा, चौथा इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी ये हम लोग लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड lines gives the direction of magnetic field intensity। ये जो टेंजेंट खींचेंगे, ये मान लीजिए कर्व है तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन जानना है तो ये टेंजेंट खींच देंगे और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में इस टेंजेंट का एरो देंगे। दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी
इसका है कि स्ट्रेट लाइन, ओके, वी कैन ड्रॉ मैनी लाइन्स, सो अ स्ट्रेट लाइन parallel to each other, okay, it will represent the uniform magnetic field, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। पांचवा जो है कर्व लाइन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, कर्व अगर है, कर्व लाइन रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा कर्व लाइन अगर है तो, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि वी आर ड्राइंग हियर, अगर इसको ड्रॉ करके देखें तो अगर ये जो है, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये इक्विडिस्टेंट, ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस है, ये 6 नंबर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर ये जो है सटा है, क्लोजली है, इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस, क्लोज पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। और अगर इक्विडिस्टेंट ही है, 7th प्रॉपर्टी, ये इक्विडिस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, इससे ज़्यादा दूरी हो गया, ये भी इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस रेयरर है, ये रेयरर है, डेंसर नहीं है, तो ये जो है यूनिफॉर्म एंड वीकर लाइंस इन वीकर फील्ड with respect to previous, this field is weaker, it is stronger, it is weaker, ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है। और अगर इक्विडिस्टेंट नहीं हो, इफ इट इज 8 नंबर, ये क्लोजर है, देन फार्दर है, फिर क्लोजर है, फिर फार्दर है, इट विल रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, it will be non-uniform field. This is the properties of the magnetic field lines. Now come to how to represent in the question. If you see the dot lines, ऐसे डॉट में बना दिया, और ये डॉट है और ये क्रॉस है, ये दो तरह का है। This is डॉट, इसको हम लोग जो पढ़ते हैं डॉट। इफ यू रीड इट विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, देन यू विल रीड इट डॉट मीन्स डॉट। डी फॉर डायरेक्शन आउट, इसका ऐसा होगा तो इसका मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड is perpendicularly outward, किसी भी प्लेन का perpendicularly outward to the plane, और if it is cross, तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड is perpendicularly inward, opposite to this, inward to the plane. So this will help you to understand the questions. In questions you will see there is a figure and crosses are given, then quickly you will understand that magnetic field is perpendicularly inward to this figure, to the plane of the paper,
to the plane of the question. If there is a dot, means perpendicularly outward. So how to represent the magnetic field lines? This is also used to represent the electric field lines also. So for the electric field lines, all the properties exist like this, only there is one difference, two difference. That will be discussed in the next video. Thank you.